class we are discussing about applications of Henry Law. So we are discussed about three applications. One is very first is soft drink bottles are uh, filled with carbon dioxide get at high pressure for increasing the solubility of CO2 gas in the water or soda water or soft drink water. And the second thing is the or scuba divers, the oxygen cylinder is mixed with helium and nitrogen due to the bands created by nitrogen gas bubbles in the body of scuba divers. Next is anoxia at the heights or at a particular altitude, the oxygen availability or the partial pressure of oxygen is very less, and this condition will decrease the oxygen availability in the lungs or in the body, and this type of things is known as anoxia. Next we move on to Rolle's law. So Rolle's law states, or it gives a quantitative relationship between partial pressure and mole fraction of the solution. पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन में जिसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी, दैट इज रोल्स लॉ. सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट when there are more than one component is known as partial pressure. Okay, if we say that two components are there, two components different pressure exerted by the vapors is known as vapor pressure, but partial vapor pressure is the pressure of component 1 and component 2 different. Partial vapor pressure or mole fraction of solution में the quantitative relationship of Rolle's law and what it states. This law is valid for liquid and liquid solution. This law states that a solution of volatile liquid, the vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction. If the liquids are volatile, vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction. So according to that, P is the vapor pressure is directly proportional to X is the mole fraction. And P is equal to P naught X. P naught क्या है भाई? आपका vapor pressure of pure component at the same temperature. Next is vapor pressure of if we say first component here is P1 naught X, and this is written as P1 naught X, and vapor pressure of second component is P2 naught X. Okay. Let the solvent be represented by 1 and solute by 2. When the solute is non-volatile, अगर solute non-volatile है तो solvent molecule non-volatile का मतलब ये होता है कि भाई वो vaporize नहीं हो रहा. Vaporize नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो solute जो है वो solution में ही रहेगा, सिर्फ solvent जो है वो vaporize होगा. तो इसका मतलब क्या है कि solvent molecule are present in vapor phase. So Pi is the vapor pressure of solvent, P1 is the vapor pressure, X1 is the mole fraction, P1 naught is the vapor pressure of pure state, then P1 is equal to P1 naught X1. This is known as the Rolle's law for which component in which solute is non-volatile. Okay, try to understand this thing that if the solute is non-volatile, which is not vaporizes, like any solute we know that sodium chloride में पानी हम मिलाते हैं तो sodium chloride जो है it's working as a non-volatile solute, वो vaporize नहीं होता है. And if the component is not vaporizes, that means that is a non-volatile solute. That means the vapor phase is only having solvent molecules. अब solvent molecules के लिए हमारे पास P1 pressure है, P1 नोट प्योर pressure है प्योर स्टेट में, और X1 मोल फ्रैक्शन है भाई. तो P1 is equal to P1 नोट X1 is P1 is your vapor pressure of solvent, P1 note is vapor pressure of pure state, and X1 is mole fraction. So total pressure जो है आपके पास. And if we plot a graph of vapor pressure and mole fraction of solvent is linear, that means अगर आपके पास vapor pressure on x axis है और mole fraction on y axis है, तो mole fraction of solvent is, we can write it as x solvent
एंड यू नो दैट मोल फ्रैक्शन कैन ओनली वेरी फ्रॉम 0 to 1, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. एंड इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 0 to 1, दिस विल गिव यू अ लीनियर ग्राफ बिकॉज P1 is equal to P1 नोट x. दैट मीन्स ये आपके पास y is equal to mx, सीधे आपके पास एक लीनियर ग्राफ आएगा और दिस लीनियर ग्राफ इज giving you at in last is a vapor pressure of pure solvent. Okay, next we move on to Rolle's law as a special case of Henry law. This question is asked in exam and this question is very important, that why Rolle's law is a special case of Henry law. What was Henry law? Henry law said that the vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to mole fraction. हेनरी ला भी यही कह रहा था अभी. और रोल्स ला क्या कहता है? रोल्स ला कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. इट्स मोर और लेस सिमिलर थिंग. तो इसमें लिखा है गिवन टेम्परेचर लिक्विड वेपराइजेस एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज रैपिड एज वेपर प्रेशर. इन्होंने बताया वेपर प्रेशर क्या होता है. वेपर प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स. ओके, बट किस इसमें सिचुएशन क्या होनी चाहिए? दिस टाइम इक्विलिब्रियम आ जाए. इक्विलिब्रियम किसका भाई? वेपर्स का और लिक्विड का. इफ वेपर एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, इन दैट केस आपके पास जो वेपर्स प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर. अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट in a given solute can be defined as Pi is equal to Pi naught xi if the solute is volatile, and in the answer of a gas, if it's a fluid one, of a segment is volatile to point exist as gas and solvency is given by Henry law. Henry law भाई सिंपली ये कहता था अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो solubility of gas in a liquid बढ़ेगी. तो उसको आप कैसे लिखते हैं? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज. ओके, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ गैस और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. के एच को पी आई नोट से अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे. Therefore, Rolle's law turn out to be unique instance of Henry law where Kh is equivalent to Pi naught. Now you know what the most important thing here is, Pi is equal to Pi naught xi. This is for Rolle's law. P is equal to Khx. This is for Henry law. And if we compare these two, then we will find out that in the case in which Henry constant is equal to vapor pressure of pure state, these two are similar. This is known as the special case at which Pi naught is equal to Kh of Henry law. You understood that thing? Because these two are more or less similar, and in that अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है Kh की वैल्यू Pi naught हो जाती है तो रोल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ बन जाता है भाई. नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन. अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन क्या बनता है? अगर मैंने एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाया, S1 here is a liquid solution. अगर मैंने लेमन जूस को वाटर में मिलाया, दिस इज आल्सो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन. लेट हम कंसिडर करें अभी दोनों कंपोनेंट जो है बाइनरी सॉल्यूशन जो बना रहे हैं वो दोनों क्या है? वोलाटाइल है. और हमने क्लोज वेसल में लिया है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन वुड एवोपरेट इफ वी अप्लाई सम हीट टू दैट, और एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है वेपर फेज और लिक्विड फेज में. टोटल प्रेशर P टोटल है. P1 आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा. P2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड. X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट एंड X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड. अब डाल्टन्स लॉ कहता है दैट टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर. Dalton's law suggests that total pressure is equal to sum of partial pressure. Partial pressure component एक का और component दो का, तो P1 plus P2. Substituting the value of P1 and P2. P1 और P2 की वैल्यू क्या होती है अभी? अब according to Rolle's law that P1 is equal to X1
P1 नोट एंड P2 इज इक्वल टू X2 P2 नोट। ये वैल्यूज पुट करने के बाद X1 P1 नोट, X2 P2 नोट आपके पास आ जाएगा। अब X1 अगर दो कंपोनेंट हैं तो X1 प्लस X2 किसके बराबर होता है भाई? If I say that there is two component तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं यहाँ पे X1 की वैल्यू 1 माइनस X2 पुट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा, प्लस X2 की वैल्यू 1 माइनस X1 पुट कर देता हूँ। इनमें से P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1, X1 को कॉमन ले लेता हूँ, X2 को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे ना आप सिर्फ X2 ही रखना, इसको मत रिप्लेस करना। तो अगर आप इसको P1 नोट माइनस X2 P2 नोट करते हैं प्लस X2 P2 नोट करते हैं तो X2 कॉमन लोगे तो आप P2 माइनस P1 नोट X2 आ जाएगा। ओके, इसे आप ऐसे सोल्व कर सकते हो भाई। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। X1 भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे उसकी वैल्यू 0। इसका मतलब X1 कंपोनेंट जो है वो P1 नोट उसका प्योर प्रेशर है। अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं इस तरफ तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और वो लीनियर इंक्रीज होगी। इस तरफ भाई X2 0 है और X2 की वैल्यू इस तरफ मैक्सिमम 1 है, तो अगर आप यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब टोटल प्रेशर कैसे वेरी करेगा? वो ऐसे वेरी करेगा। सो दिस 1 2 एंड 3 1 2 and 3 line shows total pressure line is 3 line. Second line is what? Second line shows you the partial pressure of second component increasing and partial pressure of first component increasing. So the minimum value of P total is P1 नोट and maximum value is P2 नोट। P total की maximum value कितनी हो सकती है अभी? P2 नोट हो सकती है जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, और P1 नोट जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर Y1 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 के और Y2 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 2 के, ये भाई वेपर फेज में है, तो पार्शियल डोल्टन्स लगा कहता है दैट P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल और Y2 P टोटल, दैट टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ideal solution and non-ideal solution. This is also a very very important topic. The solution that obey Rolle's law or the whole collection of concentration are known as ideal solution. जो Rolle's law को फॉलो करते हैं ना भाई, उसको आप बोलते हो आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर अब Rolle's law को फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन है कि जिस टाइम आप उन दोनों को मिक्स करोगे तो उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भाई दोनों मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना, हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए और ना ही वो ठंडा होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं NaOH को पानी में मिलाता हूँ तो वो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, उसको आप बोलते हो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विच इज नॉट जीरो। उसे जीरो नहीं, वो जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, अगर जीरो है तो सॉल्यूशन आइडियल है। Heat is neither absorbed nor evolved during the mixing of component in a solution. Heat ना तो absorb होनी चाहिए ना ही evolved होनी चाहिए जिस टाइम आप दो component को mix करते हो। Delta V mixing is change in volume of mixing has to be zero. जो वॉल्यूम जो आपने मिक्स करा है, जैसे 25-25 ml मिलाया तो 50 ml नहीं होना चाहिए, वो 52-53-55 ml नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वॉल्यूम जो है एंटायर सॉल्यूशन की वो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास दो कंपोनेंट है प्योर AA और BB, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी इंटरमोलिकुलर, और आपने उसका सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें AA BB और AB टाइप के हो गए। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस AA और BB में थे वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस AB में होने चाहिए। One of the most important thing is the intermolecular forces between AA and BB has to be similar to AB. No solution is perfectly ideal, but solution are nearly ideal. Perfectly ideal कोई solutions नहीं होते भाई। Nearly ideal solution को आप जैसे N-hexane N-heptane को मिलाते हो तो force of attractions जो
एन हेक्सेन एन हेक्सेन में थे, एन हेप्टेन एन हेप्टेन में थे, उन दोनों में एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में भी सेम ही रहेंगे। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिलाते हो, बेंजीन और टोल्यूइन को मिलाते हो, इनका आइडियल बिहेवियर होता है। The solution that do not obey Rolle's law over a whole collection of concentration are known as non-ideal solution. जो solution obey नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं non-ideal solution. The vapor pressure of non-ideal solution either higher or lower than the predicted Rolle's law. या तो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर या फिर कम होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन, अनदर इज negative deviation. So the solutions that do not obey Rolle's law over the whole collection or over the whole range of concentration आप लिख सकते हैं are known as ideal solution. Oh sorry, इसको आप non ideal solution बोलोगे। जो don't obey, जो obey नहीं करते हैं that is non ideal solution. Positive deviation क्या होती है भाई? Solute solvent interaction are stronger than solute solvent interaction. जो मैंने AA और बी टाइप के इंटरेक्शन बताए थे, उसके बाद ए बी बन गया मिक्स करने के बाद, ये इंटरेक्शंस भाई कम होने चाहिए, ठीक है, ये इंटरेक्शन ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपके पास पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्योंकि अगर ये इंटरेक्शन कम होते हैं तो ये इजीली वोलेटाइल होगा और वो वेपराइज हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन देगा। अब पी ए पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का, पी बी पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी का, delta H mixing is change in enthalpy, delta V mixing is change in volume. So PA has to be greater than XA, PA not XA, PB has to be greater than PB not XB, and delta H mixing and delta V mixing is always greater than. Total vapor pressure is more than expected as Rolle's law. तो इसका मतलब वो Rolle's law को follow नहीं करते हैं। अब now if we plot a graph of, you know, if we plot a graph of partial pressure versus mole fraction, so पहले जो ग्राफ था हमारे पास आइडियल के लिए ग्राफ लीनियर आ रहा था भाई, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसा कैसे आएगा? अगर आपके पास यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, दो कंपोनेंट है भाई हमारे पास, और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 1 है और एक्स बी यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स ए यहाँ से बढ़ रहा है, तो एक्स ए यहाँ पे 0 है और एक्स ए यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? पी ए नोट आ जाएगा। एक्स बी यहाँ पे 0 तो एक्स बी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी बी नोट आ जाएगा। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन स्पीसीज, द ग्राफ इज लाइक इट डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, ऊपर आ जाता है भाई, क्योंकि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस थे जो हमने एक्सपेक्ट करा था वो ना होके वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम थे, वो कम होने की वजह से वो इजीली वोलाटाइल हो रहा था, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? इनसाइड में इंक्रीज हो रहा था। सो टोटल प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड एज रोल्स लॉ। इथेनॉल और एसीटोन को हम मिलाते हैं तो प्योर इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, एसीटोन जो है उसमें आपके पास एसीटोन ये मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाता है जिस टाइम आप इथेनॉल को, तो वो क्या करता है? उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन भाई, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शंस आर वीकर देन सोल्यूट, मतलब भाई जो हमने ए टाइप लिया है और बी टाइप लिया है, उसके बाद जो बना है ए बी टाइप, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए, ये मोर होने चाहिए और ये कम होने चाहिए। ये ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब इजीली वोलाटाइल नहीं होगा, इजीली वेपराइजेज नहीं होगा, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। पी ए अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का, पी बी अगर पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी का, डेल्टा एच मिक्सिंग इज चेंज इन मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। So PA has to be less than PA naught XA, PB has to be less than PB naught XB, delta H mixing is less than 0, delta V mixing is less than 0. Total vapor pressure is less than expected from Rolle's law. Solution of phenol और aniline जो है भाई, वो strong intermolecular hydrogen bonding बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जिस टाइम सॉल्यूशन बनता है
उस टाइम इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। पहले कम थे फिनोल और एनिलीन में, उसके बाद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में नेगेटिव डेविएशन होता है बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास XA0 XA1, यहाँ पे आपके पास XB1 XB0, XA1 मतलब यहाँ पे PA नोट, यहाँ पे PB नोट। नाउ व्हाट डू यू थिंक द वैल्यू ऑफ, अगर यहाँ पे ये रोल्स लॉ को फॉलो करता तो वैल्यू ऐसे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कंसिडर करा है कि XB जो है वो मोर वोलाटाइल है तो उसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नाउ ये यहाँ पे आएगा भाई ऐसे, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उसमें ऊपर की तरफ था, इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि PA की वैल्यू PA नोट X से, PB की वैल्यू PB नोट XB से कम हो गई। अगर वैल्यू कम हो गई है तो ये भी ऐसे आ जाएगा भाई, नीचे की तरफ आ जाएगा, तब आपके पास टोटल वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ये उस टाइम होता है जिस टाइम सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन जो है वो क्या हो जाए भाई, वो कम हो जाए, और सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो कम होएगा। What are azeotropic mixture? Azeotropic mixtures are binary mixtures. Binary मतलब दो कंपोनेंट मिक्सचर्स होते हैं भाई, possessing the same synthesis in fluid, vapor stage and boiling stage. Azeo means same कंपोजिशन होनी चाहिए भाई, वेपर स्टेज हो चाहे बॉइलिंग स्टेज हो चाहे फ्लूइड स्टेट हो। The components of azeotropic mixture are separated by fractional distillation, क्योंकि उनका boiling point जो है वो more or less similar है। जिनका boiling point more or less similar होता है उनको हम fractionally distillation process से आप अलग अलग करते हैं। azeotropic mixture दो टाइप के होते हैं, minimum boiling azeotropes, maximum boiling azeotropes. The solution showing positive deviation from Rolle's law, एक चीज का ध्यान रखना, मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनमें 95% इथेनॉल बनता है। इसका मतलब उसमें फ्लूइड भी है, वेपर स्टेज भी है और बॉइलिंग स्टेज भी है। वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। इसका मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स है क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन देता है रोल्स लॉ से। मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन देते हैं। अगर आप नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिलाते हैं तो 68% नाइट्रिक एसिड कोरोसिव, 32% बाई मास, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट 393.5। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें आपके पास अगेन 68% नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक जो है, और 32% वाटर रहेगा इसमें। सो दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। व्हाट आर द properties of solution affected by vapor pressure? These are the most important properties, और इनको colligative properties भी बोलते हैं भाई। Vapor pressure of a solution decrease on addition of a non-volatile solute to a volatile solvent। एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस टाइम आपने इसको, आप ऐसे समझें कि पानी के अंदर नमक मिलाया, एक तो सिंपल पानी था, दो चीज़ें थी आपके पास। यू हैव अ सिंपल सोलवेंट वाटर एक बीकर में सोलवेंट प्लस सोडियम क्लोराइड था, सोल्ट। देन यू विल फाइंड इट आउट दैट वेपर प्रेशर exerted by simple water or solvent water is higher as compared to vapor pressure of solvent with solute which is sodium chloride, NaCl। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड था वो क्या था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट था। उसने क्या करा, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का था वो डिक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सॉल्वेंट को, जो वोलाटाइल था, उसको ब्लॉक कर दिया भाई, वो उसे फर्दर वेपर स्टेज में जाने ही नहीं दे रहा था। सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट। सो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ने वेपर प्रेशर कम कर दिया, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट
जो वेपर फेज में थी वो बिल्कुल कम हो गई और सोलवेंट भी कम हो गई, मतलब अमाउंट कम हो गया. एंड देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज विच इज डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, नॉट ऑन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस. दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. इनको आप क्या बोलते हो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हो. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर जो प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से इफेक्ट होती है. सबसे पहले अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट. रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? आपने सॉल्वेंट में जैसे वाटर में NaCl डाला, उसने सॉल्वेंट को वाटर को ब्लॉक करा, वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया. तो कितना वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का सोल्यूट के कंपैरिजन में कम हुआ है, उसको आप लोअरिंग बोलते हो. और रिलेटिव लोअरिंग बोलते हो कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन को आप डिवाइड कर दोगे, लोअरिंग को प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे, रिलेटिव लोअरिंग. इसको हम है ना फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. सेकेंड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, and fourth is osmotic pressure. These properties depend upon number of solute particles, जो मैंने अभी बताया, और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती है भाई. and these properties are termed as colligative properties, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है together, to bind. Colligative properties are dependent upon amount of a substance, not on nature of a substance, and these properties arise due to lowering of a vapor pressure or decrease in vapor pressure by addition of a non-volatile solute. Okay, for today this much is enough. Next class we will discuss about colligative properties.